On the CBI probe in the RG Kar rape and murder case, we're getting to know that a page of the victim's diary is under CBI scanner, and CBI is going to take the help of graphologists to find out whose handwriting is written in the diary. Those are, of course, the latest developments that are coming in at this point of time. My colleague Renik is with us on the broadcast. Renik, pages from the diary of the victim have now been recovered. It's been sent to CBI for investigation. If you could take our viewers through the details that we have on what it is that's written. देखिए, सीबीआई के सोर्सेस की तरफ से जो खबर आ रहा है कि ये जो सीजर लिस्ट था, सीजर लिस्ट का 3 नंबर जो सीजर हुआ था, वो सीजर में एक डायरी भी बरामद हुआ था। उस डायरी का जो पन्ना, वो पन्ना जब सीबीआई की तरफ से जांचा जा रहा था, उसी टाइम पर एक पेज को लेकर सीबीआई का मन में दुविधा है, क्योंकि सीबीआई का कहना है कि उस पेज में जो हैंडराइटिंग है और दूसरा जो पेज है, वो पेज का जो हैंडराइटिंग है वो सेम नहीं है, और ये किसका हैंडराइटिंग है और कौन सा सिचुएशन में ये लिखा गया था, जो चीज लिखा गया है वो किस बारे में लिखा गया था, वो जानने के लिए ग्राफोलॉजिस्ट का साहाय्य अभी सीबीआई ले सकते हैं। सीबीआई की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि वो पेज में सिर्फ एक ही सेंटेंस लिखा हुआ था, और जिसमें लिखा हुआ था आप अच्छे रहिए। बंगाली में लिखा था तुम्ही भालो थे को। ये किसको लिखा गया था, किसको उद्देश्य करके ये लिखा गया था, कौन ये लिखा था और कौन से दिन ये लिखा गया था, ये भी जानने का कोशिश अभी सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। और इसी वजह से सीबीआई की तरफ से ये जो डायरी को ग्राफोलॉजिस्ट के पास भेजा जा रहा है, और ग्राफोलॉजिस्ट को देखकर ये जो लिखा गया था, ये हैंडराइटिंग और दूसरे पन्नों का जो हैंडराइटिंग ये सेम है कि नहीं, ये देखने की कोशिश करेंगे सेम इंसान के है कि नहीं। जो सिचुएशन में वो लिखा था, वो जिस टाइम में वो लिखा था, उस टाइम में उनका मेंटल सिचुएशन कैसा था, लिखने के टाइम में क्या उनको कोई प्रेशर दिया था, ऐसा भी एक नॉलेज ये ग्राफोलॉजिस्ट की तरफ से आ सकता है। और इसी वजह से सीबीआई की तरफ से एक्सपर्ट को अभी दिया जा रहा है डायरी को। ये डायरी का जो लिखा, वो लिखा को कौन सा सिचुएशन में लिखा गया था, किसने लिखा था, ये जानने का कोशिश अभी सीबीआई की तरफ से किया जाएगा। All right, Renik, stay on with us. In fact, joining us at this point of time is Dr. Aseem Mehti of the RG Kar Hospital. So thank you so much for taking our time and speaking to us on NewsX. Now, there are these revelations and recoveries that are being made by the CBI. The recovery, of course, being the victim's diary. And of course, you know, not just that, recently, the parents of the victim came out and said that they were being bribed. What is then your, how do you then view these developments that are taking place? The fact that there are these huge allegations that are being made that they were bribed. Listen, just I'm briefing the actually CBI analysis and the CBI updatement. According to my internees and all the doctors in protest and those who are sitting on the side, and actually I took some. I talked to some news channels, local news channels, those who are very influenced news channels. Actually, all the evidence and all the witnesses has been tampered, not only tampered, washed out very sincerely and very thoroughly by the local police, OC in charge, including the DC Central and the and also the local OC, and last of all, I just like to say that Bineet Goyal, Mr. Police Commissioner, took the innings fully, and he batted the innings from the first ball to last ball like Sachin Tendulkar to wash out all the evidence, and it was handed over to CBI on the 4th or 5th day of her death. Without any leaving behind, without any incident, without any evidence. Not only the body, according to the parents, I talked to the parents yesterday directly. They told me that they were forced to hand over the body, and without the permission of the parents, the body was sent to his house at Paniyati without their permissions, and whenever they were very astonished and they are deprived in
writing down the complaints against her unnatural death, or that is homicidal death. The body was forcefully ignited and destroyed by the the अंत्येष्टि क्रिया जो होता है, जो हम लोग का जो ये में बानघाट में वो लोग को फोर्स किया है। उनका लोकेलिटीज, इंस्पाइट ऑफ लोकेलिटीज, जो उनका लोकल पीपल था वो प्रोटेस्ट किया था। और जो डायरी के बारे में आप बात कर रहे हैं, डायरी फ्यू पेजेस, वो डायरी उसका पेरेंट्स बोलता है वो पूरा डायरी उनका साथ में रहता है। उनका फ्यू पेजेस खाली ये टीआर करके वहां रखा था। और उसका मदर पेरेंट्स बोथ द पेरेंट्स, फादर एंड मदर डिनाइड द हैंड राइटिंग। वो हैंड राइटिंग कोई बना है, वो जो 6 घंटा 8 घंटा पुलिस लिया था, फुल टीम ऑफ द पुलिस, मिसेस इंदिरा मुखर्जी लीडेड बाय विनीत गोयल, they tamper the total actually evidence and in full expectancy and full hands. So there was nothing behind for CBI, and the file they transferred to CBI, it was total fake and vague, including the post-mortem that was done from 9:10 a.m. 9:10 p.m. to 10, just 1 hour time. As you know, any normal case at least suppose a broad date case takes at least 4 to 6 hour time to complete the CPM post-mortem. But in this case, they took only 1 hour time, and they were trying to force the parents to destroy the body at earliest possible time. I don't know, and the parents were personally requested the police stations and also the police personnel, those who are present right from the beginning, the DC Central, DC North, and DC Central and DC North. DC North is the main culprit and OC. Then come to DC Central, Indira Mukherjee, and all everything being handled by Vineet Goyal neatly. I don't think I don't know who is behind. And as you know, Sandeep Ghosh is the main culprit. He was in operation of the, actually he was almost in charge of the Sastha Bhavan, and he used to conduct all the allegations against their, it has been proved also, the monetary dispute and everything, every company टेंडर एवरी जो देता था, सारे करप्शन निकल गया। आप देखता है लॉट ऑफ पर्सन्स आर कमिंग इन द पिक्चर, स्पेशली ओविक दे, एज यू नो, ओविक दे हु इज ए डॉक्टर ऑफ बर्धमान मेडिकल कॉलेज। वो सारे हॉस्पिटल में जाके, सारे मेडिकल कॉलेज में जाके स्टूडेंट लोग को जबरदस्ती पास करना, उसमें जबरदस्ती पैसा लेना, ये बहुत सारा करप्शन है, ये डायरेक्टली संदीप घोष के साथ। तो व्हाट आई से, संदीप घोष एंड ओविक दे और विरूपाको जो विश्वास जो आया है, ये 2-3 तो अभी सामने आया है। इससे पीछे बहुत और भी नेटवर्क है, पूरा ट्रैक है। ये ट्रैक को पूरा ट्रैकिंग करना चाहिए। इसीलिए हमको लग रहा है सीबीआई थोड़ा सा और बेसी टाइम चाहिए कि वो -200 से शुरू किया है, तो वो जगह से हम बोलने चाह रहा है शासक दल एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, हु इज द नॉट ओनली द होम मिनिस्टर बट ऑल्सो द पुलिस मिनिस्टर एंड हेल्थ मिनिस्टर एज वेल, वो लोग बोल रहे हैं हम सीबीआई के ऊपर ट्रांसफर कर दिया। ऐसा हो नहीं सकता। सीबीआई के ऊपर वो दाय बरता के बोला है मेरा माई पार्ट इज ओवर। हाँ जी, आपने हमें बताया कि आपकी जो विक्टिम के पेरेंट्स हैं उनसे बात हुई है, उन्होंने आपको डिटेल्स बताए हैं कि यू नो हाउ दे वर फोर्स टू हैंड ओवर द बॉडी। आपने हमें ये भी अभी बताया कि जो सीबीआई को जो फ्यू पेजेस मिले हैं वो डायरी के, आपने बताया कि जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कहा है कि ये जो इनके पास हैं दे डिनाइड द हैंड राइटिंग। आप हमें क्या बता सकते हैं, और अगर आप हमें बता सकते हैं कि जो पेरेंट्स हैं यू नो उन्होंने आपके साथ क्या शेयर करा, आप अगर हमारे दर्शकों को बता सकते हैं। और भी बोलिए। और बोला है मैडम जी, ऑन द डे द डीसी नॉर्थ ऑल्सो उनका एक साइड रूम में लेके गया, लेके उसको बोला जो पैसा ऑफर किया था जो कितना पैसा में आप ये बॉडी को जल्दी डिस्पोज करने देगा, तो वो बोला नहीं हम डिस्पोज तो नहीं करने देगा, हम जो भी करना सत्कार करना उसका जो माने जो उसको मर्डर किया है, इतना ब्रूटल मर्डर एंड रेप, उनका अगर जब तक ये आइडेंटिफाई नहीं होगा। एक्चुअली द स्टूडेंट्स वर नॉट इन द सीन इन द ऑन द फर्स्ट सीन, वो बाद में पिक्चर में आया। ओनली द फ्यू नेबर्स ऑफ द पेरेंट्स, उनका जहाँ से घर है 2-3 घंटा का, अर्जिकर से 1 घंटा का गाड़ी में, 2-3 घंटा ट्रेन में लगता है, तो वो लोग थोड़ा टाइम लिया। नॉट ओनली दैट, वो लोग बॉडी दिखाया आफ्टर 6 आवर्स ऑफ डेथ, एज यू नो, उनको बैठा के 3 घंटा बाद फेस दिखाया, जब पूछताछ करके सारे एविडेंस तोड़ के जितना जो घर में बच्चा उसको मैंने मर्डर किया है, रेप किया है,
उसका बाथरूम को वॉश आउट कर दिया, उसका वॉल को तोड़ दिया, उस क्राइम सीन का पूरा तोड़ दिया। नॉट ओनली दैट, वो जो जहां वो गिरा पड़ा था, मैंने जो सेमिनार रूम में जहां दिखा रहा था, वहां उसको बैरिकेड नहीं किया। वो जो डीसी सेंट्रल इंदिरा मुखर्जी पूरा कॉक एंड बुल स्टोरी बनाया इन ऑर्डर टू सेव द एक्चुअली संदीप घोष एंड अदर्स। इसमें पूरा रैकेट है, ये फुल रैकेट। अगर पिक्चर में आने के लिए सीबीआई को टाइम लगेगा, बिकॉज लॉट ऑफ एविडेंस आर कमिंग डे बाय डे। सो आई थिंक ये हम लोग का जो आज सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग का डेट पिछड़ गया, ये हम लोग के लिए अच्छा हुआ। और मैडम जो वो ये पैसा क्यों ऑफर किया गया था, पैसा निश्चय कुछ मिसअप तो हुआ ही, ये लॉन्ग चेन है, इसमें ऊपर में कोई प्रभावशाली लोग हैं जो उसको पूरा हैंडल कर रहा है। नॉट ओनली दैट, वो लोग उसको प्रभावित कर रहा है और उसको उसका बैकग्राउंड में है जो क्राइम करते जाओ, पैसा रोजगार करते जाओ, हम लोग का फंड में पैसा आ जाएगा, तुम लोग को सेव कर देगा। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.